कल्पना चावला का नाम सुना है आपने? यस सर। कल्पना चावला प्रथम अंतरिक्ष महिला। मनु भाकर, मनु भाकर का नाम? मनु भाकर ओलंपिक विजेता खिलाड़ी है। चावला का नाम सुना है? यस सर। कौन सी वो है? अंतरिक्ष वैज्ञानिक। मनु भाकर ओम क्या थी? ओलंपिक पदक विजेता। ये तो थी विज्ञान खेल के क्षेत्र में। पढ़ाई के क्षेत्र में आपने ये नाम सुना है? ईरा सिंघल। ईरा सिंघल, दीप्ति रोहिला। दीप्ति रोहिला पता है कौन है? आपके गुरुग्राम से ही यूपीएससी में वर्ष 2023 में 39वां स्थान प्राप्त किया था और यूपीएससी रैंक 2014 में ईरा सिंघल ने पूरे विश्व में पूरे भारत में क्या किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज हम पढ़ेंगे बेटियों ने रचा इतिहास। क्या क्या इतिहास रचा है? जैसे ही हम ईरा सिंघल के विषय में पढ़ते हैं, उनके शरीर में कुछ कठिनाइयां समस्या थी। सबसे पहले उनके शरीर में साइक्लोसिस क्या थी? साइक्लोसिस एक समस्या है। बेटियों ने रचा इतिहास सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अखबार के साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मुझे रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे है ना, रीढ़ की हड्डी साइक्लोसिस की समस्या है। जन्म से ही 8 साल की उम्र में इसके कारण अधिक परेशानी उन्हें यह समस्या जन्म से ही है। और जैसे ही 8 वर्ष की उम्र हुई, अब तुम्हारी 8 या 9 वर्ष है ना, 8, 9 या 10 वर्ष, जैसे तुम्हारी उम्र में पहुंची तो उन्होंने साइक्लोसिस की समस्या काफी गंभीर होने लगी। मेरे हाथों से पैरों में भी समस्या की रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ता गया। जैसे जैसे शरीर बढ़ता गया वैसे वैसे रीढ़ की हड्डी मुड़ती गई, वैसे वैसे मुड़ती गई। इसके लिए ब्रश पेटी बांधी जाती है और जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। इस समस्या के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। अब हम देखेंगे साइक्लोसिस होती क्या है। ये क्या है? देखो हमारे शरीर में कमर की हड्डी कैसी है? सीधी है ना सभी के, लेकिन इसमें क्या है? ये ऐसा आकार में, कैसे आकार में? टेढ़ी मेढ़ी है ना। यस सर। Sometimes a person's spine curves and rotates, making it look like an S or a C. This is called scoliosis. Because your ribs attach to your spine, when the spine rotates, it raises the ribs and creates a rib hump. This is especially noticeable when you bend forward. Do you see it here? You may also notice differences in your chest or breast size, your shoulders, or your waist. They may appear uneven. The curve may become larger as you grow. Curves in the middle of your back that reach 45 to 50 degrees will probably increase throughout life. If the curve is greater than 70 degrees, it can affect your breathing. Curves in your lower back that reach 35 to 40 degrees may also get larger throughout life. In most cases, we don't know what causes scoliosis, and we call that idiopathic scoliosis. Scoliosis does not come from carrying something heavy like your backpack or from bad posture. Scoliosis does not cause back pain in most patients. There are many treatments for scoliosis. Your doctor will consider the size and type of your curve,
how much growing you have left to do, and if you have any other medical conditions. Many times, treatment includes watching your curve and also regularly getting an x-ray. Sometimes wearing a brace is effective for curves between 20 and 40 degrees in children who are growing. But wearing a brace does not make the curve smaller. The goal is to prevent a curve from progressing or getting bigger. Many families ask about alternative treatments. Physical therapy, massage, acupuncture, and chiropractic care can help some people with back pain. But there is currently no good scientific evidence showing they can prevent progression of a curve or improve the curve. Discuss these therapies with your provider. For larger curves, your doctor might recommend surgery. No matter how your doctor treats your scoliosis, don't let it stop you from being active or participating in sports or other activities you enjoy. Follow एक आती एक समस्या साइक्लोसिस, इसको थी ईरा सिंघल को। चलेगा। ईरा सिंघल की उपलब्धियां क्या है? ईरा सिंघल भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत है। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या किया है इन्होंने? लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा होती है ना, उसमें क्या कहता, पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिंगल चौथी बार में कामयाबी मिली। इसे पहले प्रयास में नहीं, कितनी बार प्रयास करना पड़ा? चौथी बार प्रयास में। और वह पहली निःशक्त महिला है जिन्होंने सार्वजनिक श्रेणी में उस स्थान प्राप्त किया। ये है इरा सिंघल, एक ऐसा नाम जिससे आज सारा देश परिचित है, क्योंकि इरा ने अपनी शारीरिक कमजोरी को अपने सपनों की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया और अपनी मेहनत और लगन के बल पर देश की सिविल सेवा परीक्षा में टॉप कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, और ये बिल्कुल सटीक बैठती है इरा सिंघल पर। मेरा अपना कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब छोड़ के आने का मोटिव मेनली ये था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है एंड लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ काम करना है। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? जिस भी जगह में जाऊँ वहाँ पे कम से कम कुछ लोगों की ज़िंदगियों में तो इम्प्रूवमेंट करके आऊँ। हमारे देश की बेटियों के लिए आपका संदेश? अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। हम सब में उतनी ही कैपेबिलिटीज़ हैं, सिर्फ हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान के उन्हें अच्छी तरह से मोल्ड करना होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इरा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और रास्ते में किसी बाधा को नहीं आने दिया, ये सब चुनौतियों को पार किया, उसी तरीके से हमारी देश की बेटियां भी अपने सपनों के लिए ऊंची उड़ान जरूर भरेंगी और हिम्मत और हौसलों को कायम रखेंगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ ममता चोपड़ा, टीडी न्यूज़ के। ईरा सिंघल ईरा ईरा सिंगल। सिंघल के इसके साथ साथ कई शौक भी थे। पढ़ाई के साथ ईरा के शौक, पढ़ाई के साथ साथ ईरा और भी कई शौक रखते थे, जैसे डांस करना। आप लोगों को पसंद है ना डांस करना? हाँ, एक्टिंग करना, थिएटर करना, यात्राएं करना। ईरा का कहना है कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर हमें खूबियों को बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देकर हमें अपनी जो खूबियां, जो विशेषता है, हमें उन पर क्या करना चाहिए? ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसके अंतर्गत सभी सामान्य बच्चे और निःशक्त बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। संविधान स्वास्थ्य सेवा संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष, कितने वर्ष के? 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसी तरह के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान
किया गया है। इस शिक्षा का व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पर किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। समावेशी शिक्षा, इसे क्या बोलते हैं हम? समावेशी शिक्षा। अब हम बात करेंगे ईरा सिंघल अब कहाँ कार्यरत है। यूपीएससी में टॉप तो किया उन्होंने, और अब वह कहाँ कार्य कर रही है? अब अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत है और विकलांगता अधिकारों के लिए लचीलापन और वकालत का प्रतीक है। अपनी इनका कहना है कि अपनी क्षमताएं आपको जेंडर पर निर्भर नहीं करता, यह आपके जज्बे और मेहनत पर भी निर्भर करती है। यह नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं कार्य नहीं कर सकती। जो आपकी हिम्मत होगी, जोश होगा, जुनून होगा, उसी में आप काम कर सकते हैं। आप बताएं सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? कल्पना चावल। किसने स्थान प्राप्त किया? कल्पना चावल। ईरा सिंघल। ईरा किसने प्राप्त किया? ईरा सिंघल। दिए गए वाक्यों के ठीक सामने पढ़ाई के साथ साथ ईरा को कौन कौन से शौक रखती है? डांस करना, एक्टिंग करना, यात्रा करना या उपरोक्त सभी? डांस। सभी शौक रखती है। सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाली प्रथम निःशक्त महिला कौन सी है? ईरा सिंघल। निःशक्त का मतलब होता है कि उनके शरीर हमारी तरह सामान्य नहीं, उनके शरीर में कुछ न कुछ व्यवधान है। और याद हमने क्या पढ़ा? ईरा सिंघल के विषय में। ईरा सिंघल कौन है? ईरा सिंघल की शिक्षा, ईरा सिंघल का शौक, ईरा सिंघल के क्या का शौक है। और आज हमने पढ़ा बेटियों ने रचा इतिहास। यह एक इतिहास के रूप में है कि एक निःशक्त महिला ने यूपीएससी प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या किया? पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपने आप में गौरव का विषय होता है। जैसे तुम कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हो ना, उससे गर्व की अनुभूति होती है कि मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसी तरह पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आना अपने आप में गौरवपूर्ण क्षण है। भाई कितना बड़े